Next, we talk about the Hardy-Weinberg principle. Now, Hardy-Weinberg principle एक प्रिंसिपल है जो हमें बताता है अलीलिक फ्रीक्वेंसीज के बारे में. जैसे कि हम जानते हैं जेनेटिक्स में कि देयर इज अलील इज अ कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर ऑफ अ जीन. जैसे लेट्स से हम एक जीन जो है ये वी रिप्रेजेंट जीन और जीन प्रोडक्ट बाई ए, तो उसका जो कॉन्ट्रास्टिंग या ऑपोजिट है वी रिप्रेजेंटेड बाई लाइक दिस, अ स्मॉल ए. जैसे हम प्लांट में वी शो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी टू रिप्रेजेंट टॉलनेस और डॉर्फनेस. वैसे ही Hardy-Weinberg principle talks about the constancy of the allelic frequency in a population. Now उसका मतलब क्या होता है कि constancy, उसका मतलब ये होता है कि the total kinds of alleles present in a population will always remain constant. वो कैसे होता है हम देखेंगे. Now Hardy-Weinberg ने इस प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करने के लिए दे यूज्ड एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो था P प्लस Q होल स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ. ओके, यहाँ पे वाई आर स्टडिंग मैथ्स. So the reason we are using algebraic expression यहाँ पे is because कि when you are studying population और most probably यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं जो है वो है probability. So maths के concept को explain करने के लिए the best thing we have is a algebraic expression or equation. So P here stands for the frequency of allele A. Q stands for frequency of allele small a, and PQ stands for frequency of allele AA. This is for A and this is okay. So according to this theory ये जो total frequency है और in a population will always remain constant. तो maybe if this increases this and this, that is the allelic frequencies of small a's and the heterogeneous one will decrease. This is what Hardy-Weinberg principle is all about. It tells कि अगर एक population let's say population A से population B में लोग माइग्रेट करते हैं, it would result in disturbing the allelic frequency of the new population. तो allelic frequency of new population as well as the old population. Okay. So this is what the basic principle of Hardy-Weinberg principle is.
Now we will talk about what are the factors which influence the Hardy-Weinberg principle. Okay, what are the factors? The first factor is that of gene flow. Now what is gene flow? Gene flow का मतलब ये होता है कि when a group of individuals, अब every individual is different and they do contain genic or allelic frequencies which are much different from others. तो अगर एक पॉपुलेशन से दूसरे पॉपुलेशन में पीपल विल ट्रैवल, सो व्हाट विल हैपन, उनकी जो जीन या अलीलिक फ्रीक्वेंसी है दैट विल चेंज इन द न्यू पॉपुलेशन एज वेल एज इन द ओल्ड पॉपुलेशन जिसे उन्होंने छोड़ा हुआ है. Now talking about migration, this is also known as genetic gene drift or genetic drift. Okay, migration, genetic migration. Now every organism needs to migrate to a let's say a habitat which is much better in terms of food or shelter or reproduction. इन द सेम वे इसमें तीन वो आते हैं, मतलब अंडरलाइनिंग्स इसमें है, वो है इमिग्रेशन, एंड ई माइग्रेशन. When an organism or a species rather leaves one population and moves to a new population, तो उस न्यू पॉपुलेशन के लोग के लिए वो जो दूसरे पॉपुलेशन से जो स्पीशीज आई है, इट वुड हैव सेड टू हैव इमिग्रेटेड. लाइक जैसे हम कॉमन टर्म्स में कहते हैं कि पीपल हु गो टू अ फॉरेन कंट्री, कि फॉरेन कंट्री में जाके ही हैज़ बिकम एन इमिग्रेंट. तो उसका ये मतलब होता है कि व्हेन यू मूव टू अ न्यू पॉपुलेशन देन यू बिकम एन इमिग्रेंट. व्हेन यू लीव योर पॉपुलेशन you become an e-migrant. Okay, so this is immigration and e-migration, and this also results in changing of the Hardy-Weinberg principle, I mean the allelic frequency. Okay, now mutations. म्यूटेशंस वो होते हैं एनी चेंजेस दैट आर मेड इन आवर ऑर्गेनिजम्स डीएनए. तो जो म्यूटेशंस होते हैं, इफ अ चेंज इज मेड इन द डीएनए दैट विल अल्टीमेटली रिजल्ट इन कि जीन की जो मतलब जीन में भी देयर इज मेंट टू बी चेंजेस अगर डीएनए में चेंजेस हो रहे हैं. सो दैट विल रिजल्ट इन चेंजिंग ऑफ द अलीलिक फ्रीक्वेंसी अगेन हियर. Then there is genetic recombination. Okay, now genetic recombination ये होता है whenever an organism is reproducing, even bacteria के बीच में जब conjugation होता है, there is mixture or fusion of genetic material, जिससे ये होता है कि द ऑफस्प्रिंग जो हो रहा है उसमें दोनों पेरेंट्स के कुछ कुछ अलील्स आते हैं, कुछ कुछ जीन्स आते हैं, नॉट द अलील्स बट अलील्स आर द पेयर ऑफ जीन. सो
उसमें से एक जीन्स you get from the mother, the other genes from the father. So recombination leads further to change in the allelic frequency again. Now natural selection, though we have discussed a lot of times. So natural selection, since a species which is able to survive, उसे ज़्यादा preference मिल रही है, so the frequency of its genes will increase, so it will disturb the allelic frequency in a population. तो natural selection जो है नेचुरल सिलेक्शन जो है वो काम कैसे करता है. सो नेचुरल सिलेक्शन जो काम करता है, इट वर्क्स बाय 3 डिफरेंट मेथड्स. Okay, it works by 3 methods, that is by stabilizing, disruptive and directional. So let's say we have a graph. This is the phenotype of number of individuals. Okay, so the graph is like this. This is the group of organisms which are preferred by nature or selected by nature. Okay. अब इसके 3 कंडीशन बनते हैं, दैट इज ओके. ओके, तो इसे समझने के लिए आई विल टेल यू एन एग्जांपल कैसे समझते हैं. लेट अस इमेजिन कि देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पर्सन. इस एग्जांपल में द 3 काइंड्स ऑफ पर्सन. द फर्स्ट काइंड ऑफ पर्सन आर जो बहुत ज़्यादा लंबे हैं. ओके, दे आर वेरी टॉल पीपल यहाँ पे. देन देयर आर पीपल हु आर ऑफ मीडियन हाइट, वो यहाँ पे है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स. और थर्ड आर द काइंड ऑफ पीपल जिनकी हाइट बहुत कम है, वो यहाँ पे है, जो डॉर्फ हैं. सो ये होता है कि लेट्स से हम कंडीशन 1 लेते हैं, और कंडीशन 1 जो है वो है हमारा स्टेबलाइजिंग. ओके, कंडीशन 1 इज स्टेबलाइजिंग ग्राफ. स्टेबलाइजिंग ग्राफ में ये होता है कि नेचर विल सिलेक्ट ओनली दोज इंडिविजुअल्स विच आर ऑफ मीडियन हाइट. मतलब आप जैसे इन स्कूल और ऑल देयर आर फंक्शंस, तो फंक्शन में टीचर्स सिलेक्ट अ वेरी स्पेसिफिक पर्सन. ओके, यू आर गुड एट सिंगिंग, सो यू कम विथ मी एंड यू विल सिंग. or you're good at dancing, you will come. So you select a person. In this way, यहाँ पे nature has selected only those individuals who are very like of the median height जैसे. Okay, so this is known as stabilizing. इसमें क्या होगा? The peak will be sharper. Peak लंबी peak होगी इसमें. Okay. Okay. Next जो है, this is the directional one.
ओके, दिस इज डायरेक्शनल ग्राफ. सो डायरेक्शनल में क्या होता है, लेट अस से कि वही एग्जांपल लेते हैं कि देयर आर 3 काइंड ऑफ पर्सन, एक बहुत लंबे टॉल, एक मीडियम हाइट के और एक डॉर्फ. तो सडनली मुझे रिक्वायरमेंट है सिर्फ टॉल लोगों की, जो बहुत टॉल हैं, और मुझे बाकी लोगों की ज़रूरत नहीं है. तो जो ग्राफ होगा वो एक तरफा होगा या एक डायरेक्शन में होगा, जिस तरफ मुझे चाहिए. अगर मुझे टॉल चाहिए देन आई विल डायरेक्ट माई ग्राफ टुवर्ड्स दिस साइड. तो ये होगा मेरा जो पीक होगा ग्राफ का, दैट विल शिफ्ट दिस वर्ड. इसका मतलब ये है जो नेचर और मतलब नेचर में देयर आर चांस इवेंट्स, हमने बात करी थी चांस इवेंट्स एंड चांस म्यूटेशंस की. तो म्यूटेशंस आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन दिस 3 ग्रुप ऑफ पीपल, लेकिन जो चांस इवेंट है, लेट्स से कि ऐसी कोई कंडीशन जिसमें बस आपकी हाइट बहुत लंबी हुई, देन ओनली यू आर गोइंग टू सर्वाइव. तो इस वे में यू आर बीइंग सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ योर हाइट. आपकी हाइट टॉल है, सो डायरेक्शनली you are naturally selected. And the last one is disruptive. The last one is disruptive. So disruptive में क्या होता है कि nature allows both the extremities of the population to survive but not the median one. इसका मतलब ये है कि जैसे हमने एग्जांपल लिया था वो टॉल एंड डॉर्फ और मीडियम हाइट वालों का, उसमें से हमने वी नीडेड ओनली द टॉल हाइट पीपल और हमें बस वो डॉर्फ लोगों की ज़रूरत थी. वी डिडंट रिक्वायर द मीडियम हाइट वाले. सो इसलिए जो ग्राफ है उसमें देयर आर 2 पीक्स, और वो जो सेंटर वाला पीस मतलब पीक था दैट वाज एलिमिनेटेड. वी डिड नॉट सिलेक्टेड, इट वाज नॉट नेचुरली सिलेक्टेड. दैट इज इट.